बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी wahlul uqdatam min lisani yafqahu qawli. Starting with the great name of Allah, who is the most merciful and beneficent. Dear students, today we are going to discuss unit number 5, book exercises. So open the book and you have your own pencil to take mark and write on the book. Okay, so let's come to the book exercise. Choose the correct आंसर फॉर द फॉलोइंग. आप करेक्ट ऑप्शन को चूज़ करना है. ठीक है, सबसे पहले the faithful followers of Muhammad sallam who had abandoned the ties of kith and kin and followed him. In this sentence and the sentence about the praise abandon the ties means कि जो ऊपर वाला सेंटेंस है इसमें ties abandon the ties जो बंधन थी उसको तर्क किया. What is mean by this praise? इस praise का क्या मतलब है? फर्स्ट ऑप्शन, held on to relationship, एक दूसरे के साथ रिश्तेदारी बांध ली. kept relationship and give up relationship, मतलब give up mean छोड़ना, तर्क करना, and maintain relationship, तो यहाँ पर give up relationship. C option is the correct option. The new converts of Medina who had helped the Prophet ﷺ through thick and thin were known as Ansar. The new converts of मदीना के नौ मुस्लिम जिन्होंने हज़रत मोहम्मद ﷺ के हर अच्छे बुरे वक्त में आप ﷺ की मदद की थी, इनको अंसार या मददगार के नाम से जाना जाता है. In this sentence, the new convert of the in this sentence above, the new converts of Medina refers to न्यू कन्वर्ट्स ऑफ मदीना का इस सेंटेंस में किस चीज़ की तरफ इशारा कर रहा है? द पीपल ऑफ मदीना हु न्यूली एक्सेप्टेड इस्लाम, वो जिन्होंने मदीना में जिन लोगों ने नई इस्लाम कबूल की थी उनको कहा जाता है. द पीपल हु न्यूली माइग्रेट टू मदीना, वो लोग जिन्होंने मदीना को हिजरत की थी. द पीपल ऑफ मदीना हु न्यूली रिफ्यूज टू एक्सेप्ट इस्लाम, जिन्होंने इस्लाम के कबूल करने से इनकार किया था. द पीपल हु लेफ्ट मदीना टू एक्सेप्ट इस्लाम, जिन्होंने मदीना को छोड़ के आप वसल्लम यानी इस्लाम को कबूल किया. सो वी हैव द करेक्ट ऑप्शन. ए ऑप्शन इज़ द करेक्ट ऑप्शन. लेट्स कम टू द थर्ड नंबर ऑप्शन. The Muslim, the Jews and the other community of this republic should be free to profess their own respective religion. The opposite of the word profess in this sentence is profess mean कबूल करना, ठीक है, मानना. Here is honor. B is give up, put up, take up. B option is the correct option. Which of the following is not a clause of the Universal Declaration of Human Rights by the UN? इसमें कौन सा UN के जो डिक्लेरेशन है, यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट, इसका एक क्लाज नहीं है. ठीक है, we are all born, we are all free and equal, we are all born free, we all have the right to live and to live in freedom and safety. Everybody has the right to hurt or torture each other. Education is right, from primary education should be free. So we have the third option. C option is the correct option. The oppressed should be protected. In this, the word oppressed in this sentence mean mazloom, free, ill-treated, untroubled, exempted. So B option is the correct option. So next we come to the vocabulary exercise. Search the text for the praise meaning of the same as the same. Relatives mean कहते हैं कि हमारे साथ praise है, तो इसकी जो हमारे साथ meaning है करीबी रिश्तेदारियाँ. Peaceful coexistence mean harmony, हम आहंगी. Good and bad time, thick and thin, अच्छे बुरे वक्त में. Freedom, free word आया है और liberty भी आई है, word liberty. So let's come to the grammar book exercise. Present perfect tense, present perfect continuous tense. Present perfect continuous tense, basically we have three tenses, but we further divided tenses into different forms.
Basically we have three tenses: present, past and future, and further it has the similarly four form. First is the indefinite, second continuous, and third perfect, and fourth form of the tense is perfect continuous. So we have completely for 12 tenses, okay, here. So we will discuss here the present continuous tense, perfect continuous tense. This tense expresses an action that started in the past and still continues in present. ये टेंस जो है हमेशा एक्शन स्टार्ट होता है पास्ट में, लेकिन कंटिन्यूस स्टिल कंटिन्यूस, लेकिन अब भी कंटिन्यूस होता है। वो एक्शन पास्ट में स्टार्ट होता है लेकिन फिर भी प्रेजेंट में कंटिन्यूस होता है। इट इज़ यूज टू स्टेट एन ऑन गोइंग एक्शन दैट हैज स्टार्टेड एट द पॉइंट इन द पास्ट। ये पास्ट में एक पॉइंट से स्टार्ट होता है और वो ऑन गोइंग एक्शन होता है। ऑन गोइंग मीन कि वो जारी एक्शन होता है। एट a time reference is also used to the sentence to show that when the action started in the past or for how long the action continues. हमारे पास जो है इन टेंस की एक खासियत है कि इसमें रेफरेंस ऑफ टाइम होगा हमारे साथ, और ये मैंडेटरी है, रेफरेंस ज़रूरी है, टाइम रेफरेंस ज़रूरी है इन टेंसेस के लिए। और स्पेसिफिक वर्ड हम यूज़ करेंगे इसके लिए, सेंस और फार यूज़ करेंगे to show the time of an action. The word since is used if the exact starting time of action is known or intended to be reflected in the sentence. Since we use since is in exact starting time, जब हमारे साथ exact starting time होते हैं तो वहाँ पर since use की जाती है। Like since Monday I was studying very hard. Since 3 p.m. ठीक है। The farmer has been plowing in the field since morning. Exact time जो है वो हमें जब बता देता है तो वहाँ पर since यूज़ की जाती है। The word for is used to express the duration of time for which the action was continuous. हमारे पास जब ड्यूरेशन ऑफ टाइम के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, फॉर यूज़ करते हैं। फॉर 3 hours, फॉर 6 months, फॉर 1 year, ठीक है, ठीक है। फॉर 3 years जब हमारे साथ ड्यूरेशन की बात कर रहे होते हैं तो हम फॉर यूज़ करते हैं। स्ट्रक्चर ऑफ सेंटेंस, हमारे साथ स्ट्रक्चर क्या है, प्लस पहले सब्जेक्ट होगा, फिर हैज़ और हैव होगा, और फिर हमारे साथ हैव बीन होगा, फिर प्रेजेंट पार्टिसिपल। प्रेजेंट पार्टिसिपल मीन ing फॉर्म ऑफ वर्ब, फिर हमारे साथ टाइम रेफरेंस होगा, फिर हमारे साथ ऑब्जेक्ट होगा। ऑब्जेक्ट टाइम रेफरेंस से पहले आएगा और फिर ऑब्जेक्ट हमारे साथ आएगा। लाइक वी हैव द एग्जांपल, ही हैज़ बीन टीचिंग इन दिस स्कूल फॉर 3 years। ये हमारे साथ सब्जेक्ट, हैज़ बीन हमारे साथ हेल्पिंग वर्ब है, टीचिंग हमारे साथ मेन वर्ब है। इन दिस स्कूल ये हमारे साथ प्रीपोजिशनल फ्रेज है, ठीक है, और ऑब्जेक्ट भी है, ऑब्जेक्ट भी है। फॉर 3 years टाइम रेफरेंस है ये हमारे साथ। तो ये हमारे साथ इसका स्ट्रक्चर हो गया, और ये हमारे साथ दूसरे एग्जाम्पल है, ठीक है। फॉर जो है हमारे, फिर मैं आपको भी रिपीट कर रहा हूँ कि सिंस और फॉर जो है हमारे साथ रेफरेंस ऑफ टाइम है, ठीक है। फॉर हम जो है एग्जैक्ट स्टार्टिंग टाइम के लिए यूज़ की जाती है, जबकि ड्यूरेशन के लिए फॉर यूज़ की जाती है। और सिंस जो है हमारे साथ एग्जैक्ट टाइम ऑफ एक्शन जब हमें रिफ्लेक्शन इंटेंडेड हो तो वहाँ पर सिंस यूज़ की जाती है। So let's come to the past perfect continuous tense. Past perfect progressive is used to describe ongoing action that has started in the past. जो स्टार्ट में बिगनिंग होता है हमारे साथ, और and continued for some time in the past, और फिर past में ही continued होते हैं कुछ वक्त के लिए। जो प्रेजेंट था वो पास्ट में स्टार्ट होता है और प्रेजेंट में स्टिल गोइंग ऑन होते हैं, जबकि पास्ट परफेक्ट टेंस जो होता है, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस, वो पास्ट में स्टार्ट भी होता है और ऑन गोइंग जो हो एक मुद्दत के लिए वो पास्ट में जो होता है वो कंटिन्यूड होता है। इट एक्सप्रेसेस a continued nature of an action that started and stopped at some point in the past. The sentence include a time reference to show that when the action started in the past or
for how long the time, for how long the action was continued in the past. जो हमारे साथ स्ट्रक्चर ऑफ सेंटेंस है, तो ये हमारे साथ हैड प्लस बिन प्लस प्रेजेंट पार्टिसिपल। यहाँ पर एग्जांपल्स की तरफ आ जाए तो सबसे पहले हमारे साथ सब्जेक्ट यूज़ हुआ है, तो हमारे साथ नेक्स्ट जो हैड बिन है, हेल्पिंग वर्ब यूज़ हुई है इस टेंस की। स्टडिंग मैन वर्ब यूज़ हुई है इन दैट्स यूनिवर्सिटी। इन दैट यूनिवर्सिटी हमारे साथ ऑब्जेक्ट यूज़ हुआ है, ठीक है। और ये एडवर्बियल भी है, ठीक है। सिंस 2018, सिंस हमारे साथ टाइम रेफरेंस यूज़ हुआ है, तो ये हमारे साथ स्ट्रक्चर हुआ, ठीक है। जो हमारे साथ पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है और पास्ट प्रोग्रेसिव टेंस, ये हमेशा ऑन गोइंग एक्शन के लिए यूज़ होता है, जो पास्ट में स्टार्ट होता है और कंटिन्यू होता है पास्ट में कुछ मुद्दत के लिए, ठीक है। इस टेंस में आपको फिर दोबारा बता देता हूँ कि टाइम रेफरेंस इज़ ऑब्लिगेटरी एंड मैंडेटरी। जो हमारे साथ टाइम रेफरेंस है सिंस और फॉर, वो ज़रूरी है। सो लेट्स कम टू द बुक एक्सरसाइज। जो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है आपने यूज़ करनी है, और इस तरह एक एग्जांपल भी आपकी बुक में दिया गया है। व्हाई इज़ अली एट नाइट स्कूल लर्न फ्रेंच। यहाँ पर आपने इसी तरह एक टेंस यूज़ करनी है, और जिसमें आपने प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस यूज़ करनी है। Why has he has been learning how to speak French। यहाँ पर वही why वाला क्वेश्चन लिखा गया है, आपने वही आंसर लिखनी है, और जो वर्ड कॉलम में दी गई है यहाँ पर लर्न और फ्रेंच, वही आपने यूज़ करनी है। Why hasn't Ebrar done his homework? Take dog walk। तो वहीं पर आप फिर यूज़ करेंगे वही टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। तो इसमें ही हैज़ बिन टेकिंग हिज डॉग्स फॉर वॉकिंग फॉर 3 years, और फॉर 3 hours, ठीक है। यहाँ पर ही हैज़ बिन हमारे साथ हेल्पिंग वर्ब यूज़ हुआ है, टेकिंग हमारे साथ ये मेन वर्ब यूज़ हुई है, ठीक है। फिर जो है वाई डिड नवाब बाय यू अ प्रेजेंट। हेल्प प्रोजेक्ट, he has been helping in the project since morning, ठीक है। वही हमने यूज़ की है। why is Sheila busy on Saturday? Sheila has been going to learn cooking lesson for 2 years। वही go cooking और lesson, cooking lesson हमने यूज़ की, और past present perfect continuous tense हमने यूज़ की। why are you so angry? Wait for hours। I have been waiting for you for 2 hours, okay। How long has Gul been an artist? Gulhan has been painting since high school। Next, make a past perfect continuous tense by using the correct form of verb। past perfect continuous tense हमने यूज़ करनी है, जो हमारे साथ helping verb हैड बिन है, और हैड बिन के अलावा जो हमारे साथ जितनी भी कंटिन्यूअस टेंसेस हैं उसमें हमारे साथ प्रेजेंट पार्टिसिपल यूज़ होता है। प्रेजेंट पार्टिसिपल फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ing एंड दैट एक्ट्स एज अ मेन वर्ब, दैट इज कॉल्ड प्रेजेंट पार्टिसिपल। तो इसमें देखिए शी हैड बिन स्लीपिंग, हैड बिन स्लीपिंग ing लगेगा for 10 hours when I woke her। सिंपली इसी तरह ये भी सेंटेंस है, दे हैड बिन जो है हमारे साथ प्रेजेंट परफेक्ट पास्ट परफेक्ट में हमेशा सिर्फ एक ही हेल्पिंग वर्ब लगता है, वो है हैड बिन प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में। दे हैड बिन लिविंग इन बनू फॉर 3 years when he lost his job। They had been waiting at the station for 90 minutes when the train finally arrived। They were very tired in evening because they had been helping on the farm for all days। Thar had been cycling, so his legs were sore into the evening, okay। So this is the book exercise, half the book exercise we have done। So do all these exercise on your book